Well, hello guys and welcome back to our YouTube channel Study with Students. So till now we have covered our first two chapter of mathematics, that is GST and banking. Hope you all like those videos, and if you haven't watched those videos, I have given their playlist link in the description box so you can watch from there. So as I have told you in my previous videos, we are starting our computer sessions from today onwards. So I will start it from class ninth onwards because it will help you to understand more basically, or we can say you can understand it more in a better way. So guys, till our 8th class we have done some basic programming, and that also in C++ only, like entering your name in Java or printing your name 10 times by using those system.out.println statements. So now we will move on further to our 9th and 10th class syllabus. So as you all have to give your board examination, I will cover only those I will cover only those topics which will basically or surely help you in giving your board examination. So till now you have got some basic knowledge about programming, and in our 9th and 10th class we will study about few important topics like loop and you can say string, etc. In loop you will also be come to know about different kind of number like happy number, sad number, Armstrong number, etc. So guys, till now we have known that Java is a powerful object oriented programming language and it is many respect सिमिलर टू C++. ठीक है, तो जावा जो हमारी है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम ऊप्स भी कहते हैं. ऊप्स विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम. और ये हमारा ज़्यादातर मतलब ये ऑलमोस्ट C++ के सेम ही है, ऑलमोस्ट ये दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. एंड जावा originated एट सन माइक्रोसिस्टम INC in 1991. जावा को सन माइक्रोसिस्टम्स एक कंपनी है वहाँ 1991 में बनाया गया था बाय एज यू ऑल नो जेम्स गॉसलिंग. ये हमारे ओनर थे या फिर क्रिएटर थे जावा के, जेम्स गॉसलिंग. अब देखो, इसे बनाने का मेन मोटिव ये था कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जावा का मेन मोटिव आप याद रखना हमेशा. क्या पता जो आते हैं ना क्वेश्चन 40 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, उसमें आपका आ जाएगा. तो जावा को बनाने का मेन मोटिव ये था कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट programming language. So without wasting any more further time, let us begin today's video and let us all dive into our 9th and 10th computer. First of all, we will discuss our pattern of question paper. So basically our question paper will be divided into two sections, section A and section B. Section A will comprise of our theory portion of 40 marks and we will be given no choice in this section A. But in our section B, it is based on programming of 60 marks and any 4 out of 6 you have to do. तो आपके पास सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करने रहेंगे. और आपको एक चीज़ बता दूँ कि सेक्शन बी में हमारा हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है. तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 प्लस 40 मार्क्स थ्योरी इक्वल टू 100 मार्क्स.
So basically this is our pattern of question paper. You all can see it. Now, as if you all will ask that how many number I have scored in my computer board exam. So let me tell you, I have scored full marks, 100 out of 100 in my computer board exam. I have shown it all to you in my introduction video also. You can go there and check out my board result. So guys, believe me, if you will consider, computer is the best subject to score 100 out of 100 marks, or let me say easiest subject to score full in your board examination. Guys, let me tell you, मैंने आधे साल ऑलमोस्ट कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन जब मैंने आधे साल स्टार्ट किया था अपना पढ़ना, और वो करके मैंने फुल नंबर ले आए थे। तो गाइस, अगर मैं ला सकता हूँ तो आप लोग भी आराम से ला सकते हैं। तो इसलिए आप ट्राई करना कि देखो, कंप्यूटर में तो कम से कम आपके फुल आ जाएं, क्योंकि देखो जो अगर फुल आते हैं ना तो जो खुशी रहती है वो एक अलग लेवल पे रहती है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो आप ट्राई करना कि आपके कम से कम तो कंप्यूटर में फुल आ ही जाए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थ्योरी भी है ना कि थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अरे थोड़ा ब्लर चला जा रहा है, 1 मिनट रुको। अब सही है। सो गाइस देखो, जो आपकी थ्योरी भी रहेगी वो ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, वो प्रोग्राम्स के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। और अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ रहा है तो फिर थ्योरी तो ऐसे ही, वो ऐसे ही है, बहुत छोटा सा ही बच्चों का खेल है। आपके पास थोड़ा सा ध्यान लगाना है प्रोग्रामिंग में, और थ्योरी को बस एक आध, मतलब ज़्यादा नहीं, करीब 10 वो होंगी डेफिनेशन है, उसको आपको याद करना है और थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, बस हो जाएगा। कुछ भी नहीं है कंप्यूटर्स में, और आप ट्राई करें तो आप आराम से फुल आ सकते हैं इन कंप्यूटर्स। और गाइस बिलीव मी, जो बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में फुल नंबर आने की खुशी रहती है ना, वो सबसे अलग लेवल पे रहती है, उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन कंप्यूटर्स so that you can score full in your computer exam. So today in this video we will do some basic theory portion. So now let us move on. So guys, first of all we will discuss few important points that may come in your theory paper. I am sure that we can say that 5 to 6 main big questions are based on these points which I will give you now. So please mark it as important and keep it on your fingertips, and also revise it last time when you will go to give your board exam. I will also provide these PDFs on my channel. You can download it from the link in the description box. So let us begin. So firstly, introduction of Java. Java is a powerful object-oriented programming language, and it is in many respects similar to C++. So as we all know, Java is a powerful object-oriented programming language, and it is many respects similar to C++. इसका मतलब जो हमारा Java है वो ज़्यादातर C++ की तरह ही है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं उसमें, वो ज़्यादातर इसकी तरह ही है। और I am sure that we all have studied C++ in our 6th, 7th and 8th classes. So now, Java originated at Sun Microsystem Inc. in 1991. जो हमारा जावा था वो 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स में बना था। It was conceived by James Gosling, Patrick Norton, Chris Worth, Ed Frank and Mike Stradin. तो जो हमारा मेन जावा बना था वो उसे मतलब बनाने का क्रेडिट हमारा मेन जेम्स गॉसलिंग को दिया जाता है, और बाकी जो ये लोग हैं इन लोगों ने उनकी मेनली बेसिकली हेल्प करी थी, लेकिन जो मेन क्रेडिट देते हैं वो हम देते हैं जेम्स गॉसलिंग जी को। अब इट वॉज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को हमारा बनाने का मेन मोटिव ये था कि हमें एक ऐसा
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल सके जिसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सके। अब देखो, सिंस जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स ओ फीचर। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि जो जावा है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो कुछ ऊप फीचर को सपोर्ट करता है, जैसे कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, एक कोड को वापस से यूज़ करना, एम्फेसिस ऑन डेटा रेदर देन मेथड, किसी भी डेटा पे ज़्यादा फोकस करना ना कि मेथड पे। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एसेस्ड बाय एक्सटर्नल मेथड, जो हमारा डेटा रहता है वो कहीं पे छुपा हुआ रहता है और हम लोग उसको एसेस नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेथड, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मेथड से बातचीत कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। न्यू डेटा एंड मेथड कैन बी एडेड ईजिली, हम अपने जावा में नए डेटाज और मेथड को ऐड कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए गाइस, ये जो है ये एक बेसिक पॉइंट है जो कि आप सबको आना चाहिए। ये ज़्यादातर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि ये रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये फिल करना रहेगा। देखो, आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर कन्वर्ट द हायर लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज और द सोर्स कोड टू मशीन कोड एट वंस। जो हमारा कंपाइलर रहता है वो हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कर देता है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाइलर रहता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब गाइस देखिए, अभी हम लोग ब्लूजे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा ब्लूजे है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम जावा की प्रोग्रामिंग को लिख के उसे कंपाइल कर सकते हैं और हम अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। अब देखो, ब्लूजे क्या है हमारा। ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फिर IDE फॉर जावा प्रोग्रामिंग। ब्लूजे हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम इजीली जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये हमारा JDK जावा डेवलपमेंट किट की मदद से चलता है। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हमने अब पढ़ा भी है पहले। सो नाउ ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर और बिहेवियर ऑफ इट ओन। ऑब्जेक्ट हमारी एक ऐसी एंटिटी है जिसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर रहते हैं। सो the characteristics of an object are also known as state, attributes or data, and the behavior are the operations that can be performed on it. जो हमारे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसे हम उसका स्टेट या एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और द बिहेवियर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनके बिहेवियर को द बिहेवियर आर द ऑपरेशंस, हाँ, जो उसका बिहेवियर रहता है वो ऑपरेशंस रहते हैं जिसे वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो हमारा ये ना एस्ट्रिक, ये हमने पढ़ा है, एस्ट्रिक हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ये क्लास है हमारा, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहते हैं, तो ठीक है ना, याद रखना। अ क्लास इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, याद रखना आप। अभी क्या है हमारा क्लास। A class is a group of objects that share common properties, relationship and behavior. तो क्लास हम उन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को कहते हैं जिनकी पास सेम प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप या बिहेवियर होता है। एंड अ क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड क्लास, जो हमारा क्लास रहता है उसे हम कीवर्ड क्लास की मदद से डिफाइन करते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो, क्लास को हम सिंपल कहते हैं कि जो हमारा क्लास रहता है वो ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास हमारी कार है और ये ग्रैंड आई10, वैगनार, सियाज और स्विफ्ट डिज़ायर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। कार वो चीज़ होगी जो मेन है, उसका जो मेन नाम है, और ये उसके हमारे वर्जन्स हैं, ग्रैंड आई10 है, वैगनार है, या फिर देखो हमारे अल्टो आता है, और भी मॉडल्स आते हैं, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हम अपने जावा के फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे ऊप्स के फीचर भी कह सकते हैं। सो गाइस, एज यू ऑल कैन सी, फीचर्स ऑफ जावा से जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट फॉलोज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स।
जो हमारा जावा है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमारे ऊप्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि है हमारे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। गाइस एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि इन चारों में से एक ना एक डेफिनेशन आपको पक्का के पक्का ही मिलेगी, एक या फिर क्या पता 2 मिल जाए। इन चारों में से थ्योरी पोर्शन में हमारा जो 40 मार्क्स का रहता है उसमें एक ना एक क्वेश्चन इन चारों में से एक की डेफिनेशन पे आता ही आता है, हर साल आता है। तो अब इसको अच्छे से याद करके आना, ठीक है ना। अब चलो हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। So guys, data abstraction is the act of representing the essential feature without knowing the background details. डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम उस फीचर को कहते हैं जब हम लोग एसेंशियल फीचर दिखाते हैं लेकिन जो उसका बैकग्राउंड डिटेल है वो नहीं दिखाते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ यूज़र, ठीक है। अब देखो ये कैमरा ही है, ये एक एग्जांपल दिया गया है। हम लोग जब अपने डिजिटल कैमरा में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ोटो आ जाती है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि वो फ़ोटो कहाँ से आई, उस पर क्या मतलब जब हमारे कैमरा ने फ़ोटो क्लिक किया तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि हमारी फ़ोटो इसमें कैप्चर हो गई, ठीक है ना। तो वही तो हमारा जो फीचर है उसका फ़ोटो वो हमें दिख रही है, लेकिन वो कैसे आई, उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड डिटेल्स क्या हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब गाइस देखो ये है हमारा इनकैप्सुलेशन। द सिस्टम ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग डेटा एंड फंक्शंस की रैपिंग करते हैं इनटू अ सिंगल यूनिट, और ये हमारा सिंगल यूनिट क्या होगा, ये हमारा होगा क्लास। इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब गाइस ये है हमारा इनहेरिटेंस। The term inheritance means to link and share some common properties of one class with the other class. Inheritance हमारा वो लिंक है या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को शेयर करता है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय एक्सटेंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास एंड यूजिंग थ्रू इट। ये ऐसे हो सकता है कि अगर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में यूज़ करें तो उसकी प्रॉपर्टीज हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म पे। द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन मेथड फॉर मोर देन वन पर्पस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पॉली वर्ड होता है, पॉली इसका मतलब होता है, आपने पढ़ा ही होगा, इसका मतलब होता है मैनी, और जो मॉर्फ रहता है इसका मतलब होता है फॉर्म्स। तो हम ऐसा भी रखते हैं कि द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। यही तो लिखा है इसमें, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन मेथड फॉर मोर देन वन पर्पस। यही तो है कि एक पर्पस से ज़्यादा के लिए यूज करेंगे या फिर एक से ज़्यादा फॉर्म्स के लिए यूज करेंगे तो उसे हम कहते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो गाइस हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है मैं उसके पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। एंड वी विल डू अवर फर्दर सिलेबस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो होप you all like this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more instant updates. Or guys, please support us. We need your support as we have started only. So please don't forget to like our videos, share it with your friends, and also comment about your suggestions or anything you want. And guys, if any of you have any doubt regarding your class 10 syllabus or any question, you can email it to us. I have given my email link in the description box. So thank you for watching. So let us wind up our video. Bye bye.